Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, chapter 9 biomolecules is over. So let me revise the important question that probably may asked in upcoming examination. So, mostly from the competitive examination because it was taken out from the competitive examination like NEET, JIPMER, AIMS, so many competitive examination organized by Government of India in each year. So you have to put down each and every question in your copy and their probable answer that I have revised from this video lecture. You will also need to write the important uh, answer and their full description in your copy along with the option, along with the correct option, because these are all MCQs type question. In this video lecture you will learn the MCQs type question from chapter 9 biomolecules. So this important question, the MCQ type multiple choice questions, are taken out from the different previously asked competitive examination. So you need to focus each and every question and note down their important concepts along with the answer. As you all know, biomolecules is very crucial and important topic and lesson for the biology and for the study of chemistry too. But most of among the biomolecules like nucleic acid, like structure of protein, are very complicated that may often confuse you if you have any problems. So along with the video lecture you will get the important links of nucleotide, the protein, lipids, and many important concepts that I have taught you in the live classes as well as in the as a video lecture. So the video lecture that available from the important and crucial topic of this lesson is available in the channels and also in the video description. In this video lecture, the video description includes the important concepts and the topic. So you need to focus and revise yourself with respect of nucleic acid, protein, and different enzymes. So without delay timing, let back over the first question and revise them thoroughly to the last question. These are about the MCQs type. So you need to write both answer and question on your copy along with the explanation if necessary. So back to the question number 1 and revise them thoroughly. Here important question from biomolecules. Now back to question number 1. आपको आंसर बताने हैं और अपने आप को इवेलुएट करने हैं, ठीक है ना। आपको कुछ टाइम मैं दूंगा, उसमें आपको खुद को इवेलुएट करना है और कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स? इसमें से कौन सा फैक्टर प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन 1 हीट, ऑप्शन 2 चार्ज, ऑप्शन 3 पीएच चेंज एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आप बताएं, आपके पास टाइम है 5 to 10 सेकेंड्स की। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो चार्ज है। हीट इफेक्ट करता है। हीट क्या करता है? प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है, प्रोटीन के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। सो हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पीएच can also be influence the enzymes activity, and as you all know enzymes are protein, so pH can also affect the activity of protein. Organic solvent can also be affect the activity of protein, but charge कभी प्रोटीन की एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो खुद चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में है। ज्विटर आयन के केस में रहता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव आयन के केस में रहता है, वो खुद पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन चार्ज वाला रहता है, तो वो डीनेचुरेशन इसके लिए चार्ज की वजह से कोई डीनेचुरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी हीट और पीएच ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से डीनेचुरेशन कॉमन है। किसमें कॉमन है? ये कॉमन है
प्रोटीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, आप अपना मार्क्स खुद जोड़ते रहिए, देखें आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग 3D शेप ऑफ अ प्रोटीन। पूछ रहा है इसमें से कौन जो है प्रोटीन के 3D शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी एमिनो एसिड सीक्वेंस, ऑप्शन सी इंटरेक्शन विथ अदर पॉलीपेप्टाइड एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। आपके पास फोर ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ABCD में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप सही ऑप्शन को ट्रिक करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और बाकी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना सा, बाकी आप जोड़ते रहिए, लास्टली आप बता देंगे। चलो, जो सही ऑप्शन है वो बी है। एमिनो एसिड सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3D शेप। एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना, वो प्रोटीन के 3D शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाते हैं, वो प्रोटीन के 3D शेप को इनेबल करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब अमीनो एसिड सीक्वेंस अवेलेबल हो। इंटरेक्शन बिटवीन अदर पॉलीपेप्टाइड, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूलर चैपेरॉन, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसका भी सेकेंड का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इन अ प्रोटीन। कह रहा है कि अमीनो एसिड रेसिड्यू का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन में वो कितना होता है। ऑप्शन ए क्या है 120, ऑप्शन बी क्या है 110, ऑप्शन सी क्या है 130 एंड ऑप्शन डी क्या है 140। ठीक है ना। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है प्रोटीन का, प्रोटीन रेसिड्यू का अमीनो एसिड्स में। ये अमीनो एसिड्स का एवरेज, अमीनो एसिड्स में एवरेज जो है अमीनो एसिड रेसिड्यू का प्रोटीन में एवरेज वेट पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। चलो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 1110, ठीक है 1110 ऑप्शन बी, ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का। अगर आपने सही तीर मारा है तो आप 1 मार्क्स जोड़ लीजिए, अदरवाइज गलत नहीं जोड़ना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया वो प्रोटीन के केस में ट्रू है, तो कौन सा इसमें से ट्रू है। ऑप्शन ए प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, ऑप्शन सी प्रोटीन इज ओनली nutrients that can build, repair and maintain tissue, and option D all the above। चलो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑल द अबव। रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, सही। प्रोटीन ओनली न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी, यानी बॉडी बिल्डिंग को रिपेयर करता है। डाउट वाला क्वेश्चन ऑप्शन सिर्फ बी है। स्किन तो सही है, टीथ और बोन्स के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर किसी MCQs में 2 आंसर सही है और उसमें ये भी ऑप्शन है ऑल द अबव, तो हमेशा ऑल द अबव ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन सब सही है, लेकिन ऑल द अबव कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, तो सारे स्टेटमेंट सही, ऑल द अबव सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर सही है तो इसको 1 मार्क्स और अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 पे आ गए। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स मेक अप ऑफ अ प्रोटीन। एक अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए, एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30 एंड ऑप्शन डी है 50। चलो
सबको पता है 20 अमीनो एसिड्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 20 अमीनो एसिड्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। इसमें से 10 जो है नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 जो है एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में बनते हैं और एसेंशियल जो बॉडी के बाहर से आते हैं, क्लियर है ना। तो 20 अमीनो एसिड जो है ये हमारे प्रोटीन को बनाते हैं। चलो ये बहुत पहले ही बताया जा चुका है, अगर ये सही है तो 1 मार्क्स और ऐड कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 6 पे आ गए, व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स कॉल्ड, अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आपके पास 5 to 10 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। चलो टाइम ओवर हो गया। ये सही ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स का एक मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये अमीनो एसिड्स है, ये दूसरा अमीनो एसिड्स है और ये तीसरा भी ऐसे जुड़ेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीच बीच में जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जितने लोगों का सही है वो 1 मार्क्स और जोड़ रहे हैं और जितने लोगों का गलत है वो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ईमानदारी आपकी है और नंबर आपके हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। अब ऊपर के स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी पूछ रहा है कि प्रोटीन के केस में इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इसमें ऑल द अबव का ऑप्शन नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन होगा सही। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। इसमें से एक ऑप्शन आपको पिकअप करने हैं जो सही है। चलो टाइम आपका ओवर हो गया है। सही ऑप्शन है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन है पॉलीमेरिक यूनिट, ठीक है, प्रोटीन का जो पॉलीमर होता है उसमें से एक एक जो मोनोमर होता है ना वो अमीनो एसिड ही होता है। ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी, बीच बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पहले ऑप्शन में क्या रहा है, कह रहा है कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जो गलत है। दूसरे ऑप्शन में प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड होता जरूर है प्रोटीन के बीच में लेकिन ये मोनोमर नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड तभी बनेगा जब एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज तब बनेगा जब प्रोटीन जो है टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अपने इनेबल करेगा। बीच बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है जब टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं तो, अदरवाइज सिंपल चेन में कोई डाइसल्फाइड नहीं बनता है। चेन जब फोल्ड होता है इस तरह से पॉलीपेप्टाइड का तो बीच बीच में कहीं कहीं डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में सल्फर भी होता है, सबको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट। कह रहा है कि नीचे जो फूड कंटेंट दिया हुआ है इसमें से कौन फूड कंटेंट जो है प्रोटीन के कंपेयर में हाई होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। टोफू एंड एग्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑल द अबव। सही ऑप्शन अगर आप दिमाग में आ रहा है तो उसको अपने नंबर के साथ इसको पुट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर आप जो है मेरे से शेयर करेंगे। सही ऑप्शन, चलो सही ऑप्शन है ऑल द अबव यानी ऑप्शन डी। टोफू एंड एग बोथ आर द हाई इन प्रोटीन। एग्स तो सबको पता है, टोफू के बारे में बता दे रहे हैं, ये फॉरेन फूड है, चाइनीज फूड है। होता क्या इसमें कि एक लंबे से
किसी एपिथीलियम वाले ट्यूब लाइक एनिमल बॉडी पार्ट्स को लिया जाता है, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है, उसमें से अंदर के मटेरियल को खाली करके उसमें मीट भर देते हैं पूरा, उसमें क्या भर देते हैं, पूरा पूरा मीट भर देते हैं, ठीक है ना, और इसको पैक कर देते हैं दो साइड से और इसको पका देते हैं। अब इसी को बोलेंगे टोफू। देखने में सांप जैसा दिखेगा, एक साइड से खाते हैं, इसमें मीट पूरा भरा होता है, मीट डाल के भर के पैक करके पका देते हैं, इसको टोफू बोलते हैं, ठीक है ना। मीट है इसलिए प्रोटीन। एग सबको पता है। ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, अनाज और जो दाल वाली चीज़ें हैं, जैसे चने का दाल, मटर का दाल, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ, घी हुआ, प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑल द अबव यानी कि टोफू, एग्स, ग्रेन, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब के सब जो है हाई प्रोटीनस कंटेंट वाले हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ऑल द अबव का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या कर देंगे इसका ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है नीचे के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें से कौन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेसिकल्स, राइबोसोम्स, सिंक्रोटोन्स, माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप चुने और अपने मार्क्स में काउंट कर लें। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। सही ऑप्शन है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज द सेल ऑर्गेनेल्स दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑप्शन बी। आपको बताया गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। ये क्या है, राइबोसोम, इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो राइबोसोम्स आर द पार्ट ऑफ सेल्स वेयर प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कह रहा है नीचे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, बताएंगे। पहला क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब इस चारों ऑप्शन में आप क्या करेंगे, कोई एक ऑप्शन जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है इसको आप बताएंगे और अपने मार्क्स में इसको ऐड कर लेंगे। चलो टाइम ओवर हो गया है। प्रोटीन कैन नॉट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। प्रोटीन कैन नॉट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी is the incorrect option regarding function of protein. The question is related to which is not a function of protein. So carrying the genetic information is not a function of protein. This is the function of nucleic acid. This is the function of nucleic acid. But apart from question option number B, rest option number A, C and D is the function of protein. Protein help in digestion of food. How? Because of the enzyme. As you all know, enzymes are protein, and without enzymes food cannot be digested. So in which way the protein help in digestion of food? By means of enzyme. Fight against the invading of pathogens. Protein help to fight against the pathogens. Protein क्या करता है, पैथोजन से फाइट करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, पैथोजन से फाइट करता है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ एंटीबॉडी।
बाई मीन्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोटीन हेल्प टू फाइट विद द पैथोजन। क्लियर है ना? बाई विच वे प्रोटीन हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजन पैथोजन्स बाई मीन्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना के प्रोटीन जो है पैथोजन से फाइट करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, ये प्रोटीन किस फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है ब्लड में? बाय मीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एज यू ऑल नो, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन that help to carry the oxygen and carbon dioxide in our blood. So the hemoglobin, antibody, enzymes are the protein that perform the function of transporting oxygen, fight against the pathogens and help in digestion. क्लियर है इतनी बातें? आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। सो फॉर दिस वीडियो you have learned the question number 1 to 10, and I hope out of 10 you, if you are regular viewers of my channels and you are already subscribed, then you daily got the information and notification of the uploaded video, then you do not have any problem to resolve the question number 1 to 10. क्लियर है? आप जितने भी वीडियो अपलोडेड है उसको आप देखे होंगे या रेगुलर पढ़ाई करते होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में से अगर आप 10 पाते हैं तो जीनियस है, 9 पाते हैं तो भी जीनियस है, 8 पाते हैं तो आप गुड है, वेरी गुड है, 7 पाते हैं तो गुड है, 6 पाते हैं बेटर है, 5 पाते हैं यू नीड टू एन एफर्ट, 4 पाते हैं थोड़े से डल हैं, पढ़ाई लिखाई में वीक है, और 3, 2 और 1 वाले ये लोग बहुत मेहनत करें, छोटी छोटी चीज़ों को भी देखें, ध्यान दें, लिखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। 3 to 1 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 to 10 के बाद हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फिर आपका इवैल्यूएशन होगा। टिल देन थैंक यू।